Very good evening, everyone. Welcome back to weekly webinar and training session of Raj Lakshmi Solution Private Limited. On behalf of Raj Lakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. Thank you so much for joining us of today's session. I am Pooja, representing Raj Lakshmi Solution Private Limited. Today we are going to talk about order processing in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's take introduction of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So we are into software, sales, service, solution, implementation and development. We also deal with Tally Prime, SAP Business One, Bittrex 24, Skill India. So now speakers are here. Presentation will be conducted by Miss Trupti. Are you aware? Yes, ma'am. And live demonstration by Miss Tejashree. Are you here? Yes, ma'am. The resource person, Mr. Bhagwati Dandaria, sir. Are you here? Yeah, thank you, Pooja. I am available. Yes. Heartily welcome all. Now I request Trupti and Tejashree to start the session. Okay, ma'am. I request to Mr. Vijay sir to present the slide. Very good evening to all who are present here. Welcome to Raj Lakshmi Solution Private Limited. On behalf of the company, I would like to welcome everyone who are present here. Myself, Miss Trupti Jadhav. This is our entire Raj Lakshmi Solution Private Limited family. So coming to our today's topic, that is order processing in Tally Prime. Let's move to introduction part of the order processing. Order processing is a link to inventory. This allows of the order position for a stock items. तो ये order processing directly inventory से link होता है and also आपके order stock item की क्या position है ये track करने में help करता है. So first point is you can track the arrival of goods order and also to check order stock items are delivered on time. It is the process by which a trader purchase and sells goods from to any party. तो आपके स्टॉक आइटम्स टाइम पर डिलीवर हुए ही है या ट्रैक करने में हेल्प करता है. So please next slide. So now we will know about order processing method, that is purchase order and sales order processing. So first point is purchase order processing. Purchase order processing is the process of placing order with the supplier for a purchase to be made from them. So there below key point of purchase order. Purchase order किसी भी पार्टी को goods purchase करने के लिए किया जाता है. It consists of the following कि किसी भी साइकिल को भी फॉलो करने के लिए ये एक चेन साइकिल होता है. उस चेन साइकिल को हमें रन करना होता है. So here is the method to run the order processing. So first point is a purchase order. Second one is a receipt note. Third one is a rejection out. Fourth one is a purchase. And last point is a debit note. Now coming to the next process, sales order processing. Sales order processing is the process of receiving orders from customer for the purpose of the selling. सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग किसी भी पार्टी को गुड्स सोल्ड करने के लिए किया जाता है. सिमिलरली सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी रन करने के लिए चेन साइकिल होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज अ सेल्स ऑर्डर, सेकंड वन इज अ डिलीवरी नोट, थर्ड वन इज अ रिजेक्शन इन, फोर्थ वन इज अ सेल्स and fifth one is a credit note. So please change slide. Now step by step we'll know more in detail. So first, purchase order. Purchase order processing key point is a purchase order. It is an order placed by a business entity with a supplier for the delivery of specified goods at a given price and at a predetermined. Purchase order में ये एक business entity है as well as supplier के साथ ये order place किया जाता है at a specific price and also specific predetermined time. Please next slide.
Okay. The second key point is a receipt note. A receipt note voucher is used to record receipt of goods, either items at stores. गुड्स और आइटम्स होते हैं यूज रिकॉर्ड करने में. रिसिप्ट नोट वाउचर हमारी हेल्प करता है. In Tally, when receipt note is tagged to purchase entry, the whole transaction is completed. Tally में purchase entry को receipt note में tag करते हैं तो हमारा पूरा transaction complete हो जाता है. The last point is if receipt note is accounted but the purchase entry is not, it is treated as a good received but bills are not received. If receipt note की entry में Tally में आपने की है बट परचेज एंट्री आपने नहीं की है, इट विल शो एज आपके बुक रिसीव्ड हो गए हैं बट बिल रिसीव्ड नहीं हुआ है. मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, द नेक्स्ट की पॉइंट इज रिजेक्शन आउट. रिजेक्शन आउट वाउचर इज Tally used for purchase returns, that is return of the goods purchased by buyers but they turn out to be defective. रिजेक्शन वाउचर टैली में परचेस रिटर्न के लिए शो किया जाता है. दैट इज जो रिटर्न गुड्स हमने परचेस किए हैं वो डिफेक्टिव निकले हैं. मूविंग अहेड फॉर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, द फोर्थ की पॉइंट इज परचेस बिल. द लिस्ट ऑफ बिल फॉर विच इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड बट वेयर द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर डिस्प्ले इन द परचेस बिल्स इन द पेंडिंग रिपोर्ट. सो लिस्ट ऑफ द बिल्स में अगर आपकी इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट है तो वो परचेज बिल के पेंडिंग रिपोर्ट में शो हो जाता है. प्लीज गो अहेड. द फिफ्थ लास्ट की पॉइंट इज परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इज डेबिट नोट. दिस नोट विल यूज फॉर परचेज रिटर्न. इट इज इशूड बाय बायर टू सेलर, डेबिटिंग टू हिज अकाउंट एंड रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेडिट नोट. डेबिट नोट परचेस रिटर्न के लिए यूज होता है. ये डेबिट नोट बायर के थ्रू इशू होता है टू सेलर बाय डेबिटिंग टू हिज अकाउंट एंड आल्सो टू मेक द रिक्वेस्टिंग फॉर अ क्रेडिट नोट. ओके, नाउ so please okay, now coming to the second process method, that is this sales order processing. The first method is a sales order. Sales order is an order placed by customer for the delivery of specified goods at a given price and at a predetermined time. सेल्स ऑर्डर होता है वो कस्टमर के थ्रू प्लेस होता है स्पेसिफिकली गुड्स की डिलीवरी के लिए, स्पेसिफिकली प्राइस एंड स्पेसिफिक दिए हुए प्रीडिटरमाइंड टाइम पर. द सेकेंड की पॉइंट्स, प्लीज चेंज स्लाइड. The second key point is delivery note. A delivery note is a document that accompanies a shipment of goods and provides a list of the products and quantity of the goods included in the delivery. Delivery note में document shipment goods के लिए use होता है. Also delivery note list of products provide करता है as well as shown as quantity of the goods included in the delivery. Moving ahead, the third key point is rejection in. Rejection in voucher in Tally is used for sales return, that is return of the goods sold but were defective. Rejection in voucher sales return के लिए यूज होता है, मतलब रिटर्न गुड्स हमारे सेल हो चुके हैं बट वो डिफेक्टिव है. The fourth key point is sales bills. A bill of sale is a document that transfers ownership of goods from one person to another person. सेल बिल ये एक डॉक्यूमेंट होता है. ये बिल एक के थ्रू वो उसकी ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है. इट इज यूज इन अ सिचुएशन वेयर द फॉर्मर ओनर ट्रांसफर पोजीशन ऑफ द गुड्स टू न्यू ओनर. सेल बिल वो सिचुएशन में यूज होता है फॉर्मर ओनर गुड्स की पोजीशन न्यू ओनर को ट्रांसफर करते हैं. तो bills of sale may be used in a wide variety of transaction. सेल बिल वाइड वैरायटी ट्रांजैक्शन में भी यूज होता है. The last key point is a credit note.
The note will be used for sell returns. It is issued by seller to buyer in a different situation, informing that his account is credited. क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न्स के लिए यूज होता है. क्रेडिट नोट अलग अलग सिचुएशन में सेलर के थ्रू बायर को इशू होता है. To the final stage, pre-closure order. After an order is raised, when the order can't be fulfilled, the cancellation can be either whole or partial. In Tally, you can pre-close order completely or partially as required by the click of a button. जब आपका ऑर्डर रेज होता है बट फुलफिल नहीं होता है तो आप होल कैंसिलेशन कर सकते हो, आइदर पार्शली कैंसिलेशन. So okay, so this was all about purchase and sales order processing. It's time for live demonstration of order processing in Tally Prime. So I request Ms. Tejashree ma'am to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Okay, thank you, Dhruti. It was nice presentation. Just a minute, I'm sharing my screen. My screen is visible? Yes. Okay. So hello everyone, myself Tejashree. I'm here to represent the live demonstration on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली प्राइम. जैसे कि तृप्ति मैम ने समझा है कि परचेस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और सेल्स ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस आप टैली में मेंटेन कर सकते हो और कौन से वाउचर्स में आप उसकी सारी प्रोसेस मेंटेन कर सकते हो. तो सबसे पहले हम परचेस ऑर्डर देखेंगे और परचेस ऑर्डर स्टार्ट होती है ऑर्डर से. जैसे कि मैंने सप्लायर को एक ऑर्डर दे दी है पर्टिकुलर कुछ स्टॉक आइटम्स की. तो ये स्टार्ट करने के लिए हम पहले वाउचर्स में आएंगे. वाउचर्स में आपको परचेस ऑर्डर ये वाउचर टाइप यूज करना है. तो वो एक्टिवेट करने के लिए आपको F10 में आना है और F10 में आपको यहाँ पे शो इनएक्टिव में जाना है और जो भी आपके वाउचर है बने हुए उसको बस इनएक्टिव एक्टिव करना है. जैसे कि मुझे अभी परचेस ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पे मैं परचेस ऑर्डर एक्टिव करूंगी. यहाँ पे परचेस ऑर्डर एक्टिव हो गया है. तो जैसे कि मैंने सप्लायर को कुछ पर्टिकुलर स्टॉक आइटम्स का ऑर्डर दिया है. ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम इस वाउचर में एक पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे कि मेरी क्रेडिटर पार्टी है. इसके आपको मैंडेटरी जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो आपको फिल कर देनी है. यहाँ पे पार्टी डिटेल्स हो गया. यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ऑर्डर ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर और उसकी ट्रैकिंग करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे जैसे हम परचेस ऑर्डर बना रहे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना ज़रूरी है. मैंने 1 ऑर्डर नंबर डाल दिया है. देन परचेस अकाउंट. अभी मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की ऑर्डर देनी है तो मैं मोबाइल क्रिएट कर लेती हूँ. मोबाइल के मुझे 100 ऑर्डर देनी है और इसकी ड्यू डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. मैं फर्स्ट अप्रैल ही रखती हूँ. यहाँ पे क्वांटिटी डालती हूँ 100 क्वांटिटी. रेट डाल देती हूँ 5000. तो मुझे मोबाइल की 100 क्वांटिटी की ऑर्डर देनी थी तो मैंने ये परचेस ऑर्डर में मेंटेन कर लिया है. अब इसका रिपोर्ट भी आपको कहाँ पे दिखेगा वो मैं बता देती हूँ. डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है आपको. उसके बाद में इन्वेंट्री बुक्स में आपको सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर बुक आएगा. यहाँ पे आप आपके परचेस ऑर्डर देख सकते हो जितने भी आपने मेंटेन किए हैं. उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप यहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में भी रिपोर्ट देख सकते हो ऑल ऑर्डर्स में. जैसे कि मेरा एक परचेस ऑर्डर मैंने बना हुआ है और वो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि उसका अभी आगे प्रोसेस बाकी है. तो यहाँ पे आप आपका ऑर्डर देख सकते हो. नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी रिसिप्ट नोट. जैसे कि मैंने ऑर्डर दे दिया है अभी मुझे उसके अगेंस्ट गुड्स रिसीव हो गए हैं. तो गुड्स रिसीव होने के बाद यहाँ पे हम वो मेंटेन करने के लिए फिर से वाउचर्स में आएंगे. F10 प्रेस करेंगे. यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट का जो वाउचर है वो एक्टिवेट करना है.
यहाँ पे सेम पार्टी ले लेंगे क्रेडिटर। तो ये रिसिप्ट नोट किसके अगेंस्ट है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर ट्रैक करना है। जैसे कि मैंने ऑर्डर नंबर 1 लिया था, ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट ये रिसिप्ट नोट बन रही है, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंशन कर लिया। जैसे ही ऑर्डर नंबर मेंशन करते हैं, जो भी हमारी ऑर्डर रहेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएंगी। तो जैसे मैंने मोबाइल्स का 100 पीसेस का ऑर्डर दिया था, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको मेंटेन करना है, जिससे आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो आप पूरे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ट्रैकिंग नंबर 1, ऑर्डर नंबर भी 1 रखेंगे और एंटर करके सेव कर देती हूँ। रिसिप्ट नोट मतलब हमें गुड्स रिसीव हो गए हैं बट उसका एक्चुअल बिल नहीं बना है, तो उसका रिपोर्ट भी टैली में कैसे दिखेगा वो बता देती हूँ। फिर से आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है। यहाँ पे परचेस बिल पेंडिंग में आना है। परचेस बिल पेंडिंग में आपको दिखाई देगा आपकी जो रिसिप्ट नोट आपने बनाई हुई है, यहाँ पे गुड्स रिसीव हुए हैं बट बिल नॉट रिसीव्ड, बिल अभी तक उसका बना नहीं है, मेंटेन नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट का रिपोर्ट दिख जाएगा। फिर से हम वाउचर्स में आ जाएंगे। अभी जो हमें गुड्स रिसीव हुए हैं उसमें से कुछ जो गुड्स है वो डिफेक्टिव है, तो वो मेंटेन करने के लिए टैली में आपको रिजेक्शन आउट का वाउचर दिया गया है। फिर से हमें F10 करना है अदर वाउचर्स में, और यहाँ पे रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो एक्टिव कर लेना है। तो जैसे कि मैंने 100 की ऑर्डर दी थी और उसमें से 10 गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, तो फिर से पार्टी सिलेक्ट कर देंगे। इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो अलग है, तो यहाँ पे बस आपको लेजर अकाउंट सिलेक्ट करना है, सप्लायर नेम और एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गुड्स आपका जो बना हुआ है मोबाइल, पैकिंग नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1 ही रखेंगे और इसमें क्वांटिटी 10, तो 10 क्वांटिटी डिफेक्टिव है, तो हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। तो जैसे कि अभी 100 की हमने ऑर्डर दी थी, उसमें से 10 जो गुड्स हमें रिसीव हुए थे उसमें से 10 डिफेक्टिव है, तो अभी बिल बनेगा 90 गुड्स का, तो उसका रिपोर्ट भी आपको दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है और यहाँ पे परचेस बिल पेंडिंग में आपको दिखाई देगा कि गुड्स रिसीव हुए हैं। इनिशियल क्वांटिटी 100 थी, पेंडिंग क्वांटिटी अभी 90 है। उसको अगर F1 करेंगे तो आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी। ये रिसिप्ट नोट बना था 100 क्वांटिटी का और रिजेक्शन आउट का 10 क्वांटिटीज का बना हुआ है, तो अभी बिल बनना बाकी है 90 गुड्स का, 90 नंबर्स का। तो फिर से वाउचर्स में आ जाएंगे, F9 प्रेस करके परचेस वाउचर बना लेंगे उसका। रिजेक्शन आउट हमने कर लिया, उसके बाद की प्रोसेस रहेगी टैक्स इनवॉइस परचेस का, तो वो यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर फिर से पूछेगा, रिसिप्ट नोट नंबर 1 जो हमने रिसिप्ट नोट मेंटेन किया था, और ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारी क्वांटिटी थी रिजेक्शन करके वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी 90 गुड्स, तो ये मेंटेन कर लेंगे। न्यू रेफरेंस रखेंगे और सेव कर लेंगे। अभी ये हो गई प्रोसेस परचेस ऑर्डर की, बट उसमें जो हमने परचेस किया है तो उसमें से 90 गुड्स में से कुछ गुड्स मुझे रिटर्न करने हैं, तो वो रिटर्न करने के लिए टैली प्राइम में आपको डेबिट नोट का ऑप्शन है, तो डेबिट नोट यूज करने के लिए फिर से आपको F10 में आना है और यहाँ पे डेबिट नोट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये गुड्स डिफेक्टिव नहीं है, जस्ट मुझे रिटर्न करने थे, तो यहाँ पे मैं डेबिट नोट ऑप्शन यूज करूंगी। फिर से वही पार्टी क्रेडिटर, परचेस अकाउंट, स्टॉक आइटम ले लेंगे मोबाइल, उसमें से 10 क्वांटिटी में रिटर्न कर रही हूँ।
अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे, किस बिल के अगेंस्ट हम ये रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने जैसे परचेस बिल बनाया था, तो उसके अगेंस्ट ये रिटर्न हो रहा है, तो ये मेंशन कर लेंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा, ऑर्डर के बाद गुड्स रिसीव हो गए, तो हमने रिसिप्ट नोट बना ली। रिसिप्ट नोट बनाने के बाद जो रिजेक्शन हुआ 10 क्वांटिटी का, वो रिजेक्शन आउट में मेंशन किया। उसके बाद बचे हुए जितने भी गुड्स थे उसका परचेस बिल बना लिया, और परचेस में से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। तो जो दो रिजेक्शन हमने किया था, उससे हम क्लोज कैसे करेंगे वो एक बार देख लेंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आपको वो ऑर्डर दिख जाएगी कि 10 क्वांटिटी का जो हमने रिजेक्शन किया था बैलेंस क्वांटिटी का, तो उसे एक रीजन देके हम वो प्री क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको RW करके ऑर्डर प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन है, वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर की क्वांटिटी हमें लिखनी है, 10 क्वांटिटी हमने रिजेक्ट किया था, और रीजन ऑफ प्री क्लोज यहाँ पे डाल देंगे डिफेक्टिव। तो ऐसे हम वो पूरी ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पेंडिंग अमाउंट और पेंडिंग आउट बिल यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी परचेस ऑर्डर की सारी प्रोसेस। सेम आपको सेल्स में भी करना है। सेल्स ऑर्डर जैसे कि किसी की तरफ से, मतलब सामने वाले पार्टी से हमें सेल की ऑर्डर आई है कुछ गुड्स की, तो वो मेंटेन करने के लिए पहले सेल ऑर्डर होगा। उसके बाद में हमने गुड्स उनको दे दिए, तो डिलीवरी नोट उसका बनेगा। डिलीवरी नोट मतलब गुड्स डिलीवर हो गए बट उसका अभी तक बिल नहीं बना है, उसे हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं, तो वो मेंटेन होगा। उसके बाद में अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले तो डेट जो रहेगा वो हमें रिटर्न कर देगा, तो वो हम रिजेक्शन इन में मेंटेन करेंगे। उसके बाद जितने गुड्स हमें रिटर्न आए वो बैलेंस क्वांटिटी की सेल इनवॉइस बनेगा, और अगर उसमें कुछ पार्टी ने गुड्स रिटर्न दे दिया हमें तो क्रेडिट नोट बनेगा। तो ये कैसे बनेगा वो मैं बताती हूँ। वाउचर्स में आना है आपको, फिर से यहाँ पे F10 प्रेस करके सेल में आना है, सॉरी हाइड इनएक्टिव करना है, और यहाँ पे सेल ऑर्डर एक्टिव कर लेना है। तो सेल ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे। जैसे कि मुझे डेटर नाम की एक पार्टी है, उसकी तरफ से 100 लैपटॉप की ऑर्डर आई है, तो वो लैपटॉप के ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन करूंगी। ऑर्डर नंबर कंपलसरी आपको डालना। यहाँ पे सेल्स अकाउंट में स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ, लैपटॉप। ड्यू डेट आप डाल सकते हो, फिर कब तक आपको ये ऑर्डर प्लेस करनी है। यहाँ पे 100 क्वांटिटी का लैपटॉप, रेट 10,000 ले लूँगी। यहाँ पे ऑर्डर आई है 100 क्वांटिटीज की, तो वो मैंने मेंटेन कर लिया सेल ऑर्डर। तो अभी सेल ऑर्डर के अगेंस्ट हमने सामने वाले पार्टी को, डेटर्स को गुड्स डिलीवर कर दिया, तो वो गुड्स डिलीवर कर दिए तो वो कहाँ पे मेंटेन करेंगे आप, डिलीवरी नोट में। तो F10 प्रेस करके फिर से आपको डिलीवरी नोट में आना है, और डिलीवरी नोट में आके यहाँ पे सेम पार्टी क्रिएट कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ऑर्डर नंबर हमारा 1 था, वो यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे। सेल्स अकाउंट, जैसे ही हमने ऑर्डर नंबर ट्रैक कर लिया जो हमने ऑर्डर प्लेस की थी, यहाँ पे उसकी सारी क्वांटिटीज और रेट वगैरह आ गया। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 रखेंगे और सेल डिलीवरी नोट मेंशन कर लेंगे। अभी इसका रिपोर्ट कैसे दिखेगा आपको टैली में, तो आपको फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है, और यहाँ पे सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जैसे हमने ऑर्डर बनाई थी तो वो ऑर्डर यहाँ पे दिखेगी, बट उसके अगेंस्ट हमने डिलीवरी नोट भी मेंशन कर लिया है, तो वो सेल्स बिल पेंडिंग में आएगा, क्योंकि गुड्स डिलीवर हो गए बट सेल बिल उसका बनाना बाकी है। तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा सेल्स बिल पेंडिंग में कि गुड्स डिलीवर हुए हैं बट बिल नॉट मेड। तो अभी 100 क्वांटिटीज का बिल बनना बाकी है, तो वो बिल बना लेंगे। बट उसके पहले
क्लाइंट से हमें कुछ गुड्स रिटर्न आते हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव है, तो वो डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपको F10 में आना है। रिजेक्शन इन का जो वाउचर है, यहाँ पे आप आपके रिटर्न आए हुए डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे पार्टी की तरफ से 10 गुड्स 10 लैपटॉप डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देती हूँ और मेंशन कर देती हूँ कि 10 डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न आए हैं। उसके बाद में अभी 100 क्वांटिटीज दी थी और 10 रिजेक्ट हो गए, तो बचे 90 गुड्स, उसका हम सेल इनवॉइस उनको भेज देंगे। तो वाउचर्स में फिर से आपको आना है, F8 प्रेस करना है, सेल्स वाउचर, और वहाँ पे सेम पार्टी लेना है। यहाँ पे डिलीवरी नोट ट्रैक करना है आपको, किसके अगेंस्ट ये सेल बिल बन रहा है, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो भी बैलेंस क्वांटिटी थी उसका बिल यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि 100 ऑर्डर दिया था, 10 रिजेक्ट हो गया, और अभी 90 नंबर्स का यहाँ पे सेल इनवॉइस बनेगा। ये मैंने मेंशन कर लिया न्यू रेफरेंस लेके। तो अभी ये सब मेंटेन होने के बाद अभी पार्टी ने मुझे और गुड्स रिटर्न कर दिए, क्योंकि उनको उनके कोई भी रीजन की वजह से उन्होंने रिटर्न कर दिए। तो वो रिटर्न आए हुए गुड्स हम मेंशन करेंगे क्रेडिट नोट में। तो फिर से आपको वाउचर्स में आना है, F10 में आना है, और यहाँ पे Alt F6 करके क्रेडिट नोट ऑन करनी है। यहाँ पे सेम पार्टी ले लेंगे, सेल्स अकाउंट, और उसमें से 10 गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिए। यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे कि तो कौन से बिल के अगेंस्ट ये क्रेडिट नोट हम पास कर रहे हैं। तो जैसे कि वो सेल बिल हमने जो बनाया था उसके अगेंस्ट हमने ये यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। तो पूरे प्रोसेस हमने कर ली। अभी उसका रिपोर्ट यहाँ पे कैसे दिखेगा, जैसे हमने रिजेक्शन इन की एंट्री पास की थी, रिजेक्ट हुआ है गुड्स की, तो वो यहाँ पे आप वो जो ऑर्डर पेंडिंग थी वो क्लोज यहाँ पे कर सकते हो। फिर से आपको सेल्स बिल पेंडिंग, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आना है, और यहाँ पे जो हमने 10 क्वांटिटी रिजेक्ट होके आई थी हमें, वो क्वांटिटी यहाँ पे प्री क्लोज करनी है वो ऑर्डर। तो यहाँ पे फिर से आपको RW करना है, प्री क्लोज ऑर्डर करना है, और क्वांटिटी मेंशन कर सकते हो आप, आपके जितने मतलब आपको जो क्वांटिटी से मेंशन करना है, प्री क्लोज करना है, वो मेंशन करेंगे, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि डिफेक्टिव है, और क्लोज करेंगे। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग और कोई भी बिल आपका मेंशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप मेंशन की है। तो ऐसे आप टैली में सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो। So that's it from my side. Thank you. Thank you, Dhruti and Tejasri. It was knowledge sharing session. It's time for overview. Now, over to you, Bhagwati sir. Thank you, everyone. So, myself is Bhagwati Dandaria. So, today's session is sales and purchase order processing in the Tally. So, normally any of the organization, they are maintaining the inventory. So, they have need a track of the orders. And also want to track the delivery note and receipt note and purchase order processing, all these things, because according to the inventory processes, किसी भी organization में it's a big challenge to how to manage the inventory, how you can forecast the inventory, how you can plan for the inventory. This is a big challenge. कहीं भी किसी भी organization में ये challenges आते हैं कि आज कोई एक stock item इतनी ज़्यादा हमारे पास है, because of the we are not aware about the status of the inventory and flow of the inventory. तो हमें पता नहीं होता, हम ऑर्डर ज़्यादा दे देते हैं, हमारे पास स्टॉक डंपिंग होता है, हमारे उसके कारण we are losing the lot of money
in terms of the warehousing rent and in terms of the expiry, if that is expiry products and many other reasons की कुछ products ऐसे भी होते हैं जो काफी कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं. These are very critical situations. तो in terms of the order processing in Tally Prime, आपके पास आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग वन स्मॉल एग्जाम्पल, कि आपके पास एक ऑर्डर आया एक कस्टमर्स का, या आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आके रखते हैं कस्टमर्स के. अब आपके पास इन्वेंट्री उस पर्टिकुलर आइटम की कितनी है, आपके पास टैली में बताता है. आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, इन्वेंट्री करंट पोजीशन में क्या है, और आपके पास ऑर्डर कितने आपने सप्लायर को देके रखे हैं परचेज ऑर्डर, उसके बेस पे आपके पास एक रिपोर्ट मिल जाती है कि अब आपको कितना इन्वेंट्री और लेना चाहिए. इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि आपको ये देखना है कि मुझे अभी जो ऑर्डर देना है, तो ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री जो करंट है, जो ऑर्डर आया है उसमें से माइनस हो गई, बैलेंस ऑर्डर, बैलेंस क्वांटिटी का मैं ऑर्डर दे दूंगा मेरे सप्लायर को, या मैंने जो ऑर्डर दिया वो भी माइनस हो गया, उसके बाद जो बैलेंस बचा उसका ऑर्डर दे दूंगा. लेकिन मुझे डेफिनेटली मुझे स्टॉक भी रखना है, और स्टॉक भी मुझे इसी हिसाब से रखना है कि मेरे एक महीने की जितनी लिफ्टिंग है, जितना मेरा एक महीने के में स्टॉक निकलता है, उसके बेस पे मुझे ऑर्डर देना है कि मेरा स्टॉक भी उसी हिसाब से मैं मैनेज कर दूँ. यस, दिस इज पॉसिबल. री ऑर्डर लेवल पर वहां पर आप देख पाएंगे कि मेरा एक महीने में कितना स्टॉक नॉर्मली सेल होता है, उसके बेस पे अब मुझे कितना ऑर्डर देना चाहिए. इस प्रोसेस को अगर आप, ऑर्डर प्रोसेसिंग को अगर आप मेंटेन करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये है कि आपका पूरा का पूरा इन्वेंट्री आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपके फोरकास्टिंग के हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, जिससे आपका स्टॉक डंपिंग नहीं होगा, स्टॉक एक्सपायरी नहीं होगा, आपका वेयर हाउसिंग का कॉस्ट नहीं भी लगेगा, और आपकी कैपिटल डंप नहीं होगी, कैपिटल आपकी जो है, आपका कैश फ्लो नहीं रुकेगा. So this is a big advantage of the order processing. This is a nutshell, it's a final nutshell of the stock inventory processes, order processes of the advantage. Next आ जाते हैं. अभी हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका हम लोग एक ऑर्डर आता है, उसको मल्टीपल टाइम में डिलीवरी देते हैं. जैसे जैसे हमारा स्टॉक बन रहा है, जैसे जैसे मेरे पास स्टॉक आ रहा है, मैं डिलीवरी करता चला जाता हूँ. अब एक ऑर्डर के सामने मैं मल्टीपल डिलीवरी कर रहा हूँ, अब मुझे एक इनवॉइस बनाना है. टैली में एक सिंगल क्लिक पे ये काम किया जा सकता है, और हमें ऑर्डर की रिपोर्ट की पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं उसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है. और अगर हमें कोई ऑर्डर प्री क्लोजर करना है कि अभी ठीक है, हमारे पास जो क्वांटिटी थी हमने भेज दी, और जो बैलेंस क्वांटिटी है वो अभी पॉसिबल नहीं है डिलीवरी करना, तो हम उसको प्री क्लोजर भी कर सकते हैं. सेम वे में मल्टीपल ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए हैं कस्टमर्स के, और उसको मुझे एक ही डिलीवरी नोट में पूरा डिस्कस करना है. यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और वो पूरी ट्रैकिंग हम एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ द सेम वे, मल्टीपल डिलीवरी नोट पे एक ऑर्डर एक सेल्स बिल में कन्वर्ट करना है, मल्टीपल सिंगल डिलीवरी नोट को मल्टीपल सेल्स बिल में कन्वर्ट करना है, ये भी प्रैक्टिकली संभव है टैली प्राइम के अंदर में. ये आपके हिसाब से फ्लेक्सी है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिलीवरी नोट नहीं बनाती, रिसीट नोट नहीं बनाते, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर से भी ट्रैक कर सकते हैं. नो नीड टू ट्रैक, use this complete process like delivery note and receipt note. You can directly do that, by order processing. Next, same way, if you are not tracking the orders directly, आपको delivery note बना के directly invoice बनाना है, directly receipt note लेकर के directly purchase invoice send करना, yes, it is also possible. इसके साथ साथ आपने कोई एक ऑर्डर एक कस्टमर के साथ में, अगर मान लीजिए 1000 रुपीज पर टन का लिया हुआ है, आपके पास पता है आप दूसरा ऑर्डर आपने 1200 रुपीज पर टन का ऑर्डर लिया होगा. अब आपके मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, मल्टीपल प्राइसिंग है, आप इसको चेक कर सकते हैं टैली के प्राइम के थ्रू. प्राइम के थ्रू आप इसको पूरी तरीके से चेक कर पाएंगे कि मेरा 1000 रुपीज का पर टन का जो ऑर्डर था, कितना डिलीवरी हो गया, कितना पेंडिंग है, और 1200 वाला कितना पेंडिंग है. और उसके बेस पे आपको कस्टमर को बिलिंग वगैरह कर सकते हैं, और उसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं. दिस इज कंप्लीट प्रोसेस फॉर द ऑटोमेशन थ्रू द ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ द टैली प्राइम. तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ द ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिससे आपका पूरा का पूरा टाइम सेविंग होगा, स्मूथ बिजनेस आप रन कर पाएंगे, कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी दे पाएंगे, फोरकास्टिंग कर पाएंगे, टाइम पर आप अपने सप्लायर से ऑर्डर दे पाएंगे,
और उसके बेस पे आप ऑन टाइम, जब आपको कस्टमर को डिलीवरी देना है, जो आपका टाइमली टाइम है, उसके बेस पे आप उसको ऑर्डर प्री ऑर्डर दे पाएंगे, ताकि ऑन टाइम आपके पास स्टॉक रहे। और जितना स्टॉक आपको, जो आपकी लिक्विडिटी है महीने की, 30 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, उसके हिसाब से जो आपको मेंटेन करना है, उसके बेस पे आप मेंटेन कर पाएंगे स्टॉक को, ताकि आपका कस्टमर रिटर्न भी नहीं हुए, आपका स्टॉक डंपिंग नहीं हुए, आपका स्टॉक वेस्ट नहीं हुए, लॉस नहीं हुए, आपका वेयर हाउसिंग का पैसा नहीं लगे। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ द इन द टैली प्राइम। तो ये एक आइडिया था टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जिसके लिए आप हमारे किसी भी अकाउंट मैनेजर जो आपके साथ कनेक्टेड है, आप उनसे टच कर सकते हैं। आप हमारा YouTube वीडियो का देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेशन नेक्स्ट वीक में, जिससे आप इस पूरे के पूरे प्रोसेसेस को आप अपने लेवल पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसमें कोई सपोर्ट लगेगा, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो यूज दिस। एंड आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हमारे चैटबॉट में है। अभी आप जूम चैटबॉट में आप देखेंगे हमारा YouTube चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आफ्टर दिस मीटिंग्स आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे जितने भी नए अपडेशंस आ रहे हैं, जितने नए ट्रेनिंग सेशंस आ रहे हैं, जितने नए फीचर्स आ रहे हैं, उस सभी फीचर्स का आपको वीडियोस वहां पर हमारा मिलेगा, और प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेगा, जिसको आप यूज करके आप टैली को कंप्लीट सीख सकते हैं। यू हैव नो नीड टू गो एनी ट्रेनिंग सेंटर एंड यू कैन यूज दिस वीडियो एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर टाइम, एंड यू लर्न टैली एंड यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली। So this is the idea of our YouTube channel. There is all the features are available, all the videos are available. इसके साथ साथ अभी आप सबको मालूम है टैली रिलीज 3 आ रहा है। रिलीज 3 में बहुत से नए फीचर्स आने वाले हैं। दैट इज काफी चीजें हमने पहले 2 सेशन में दिखाई भी है, बताई भी है। अभी हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। एवरी वीक हम आपको रिलीज 3 का, दिस इज अ वेरी बिग रिलीज 3 के एक टॉपिक्स को हम आपको दिखाएंगे। दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज, यू कैन टेक द एडवांटेज, यू कैन रन योर बिजनेस स्मूथली। इसके साथ साथ काफी चीजें हैं, राज्य लक्ष्मी सिर्फ टैली नहीं कर रहा है। आपका अगर बिजनेस काफी बड़ा है, आपको ERP सॉल्यूशन चाहिए, हम SAP बिजनेस वन, SAP बिजनेस वन ERP, दिस इज वर्ल्ड नोन ERP, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए अब मल्टी लोकेशन, मल्टीपल टाइप ऑफ द प्रोसेसेस, multiple type of the complex scenarios, multiple type of the efficiency and machine optimization, all these things you can maintain in the SAP ERP system, जिसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को और ज्यादा स्मूथ ले जा सकते हैं। साथ साथ अगर आपके बिजनेस को आपको और ज्यादा इंक्रीज करना, बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो इसके लिए आपके पास इंक्वायरी की कमी है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो मैनेज, you can also contact with us. We are also working with one of the collaboration tool that called BridgeX24. This is a world second largest company, and यहाँ पर आप इंक्वायरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सभी चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा स्मूथ ले जा सकें, आप अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, आप अपने काम को इजी कर सकें। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पूरा वहां पर है, जिससे आप इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकें अपने लोगों के साथ में, और आप वहां से ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकें, ताकि आपकी बिजनेस ज्यादा बढ़े, ताकि आप अपने बिजनेस को टैली में और SAP ERP में स्मूथली रन कर पाएं। तो दिस इज आइडिया ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स एंड टैली ऑन क्लाउड। एज यू नो, आज की डेट में टैली क्लाउड सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है। आप अपने टैली को क्लाउड पर होस्ट कीजिए, ताकि आप अपने टैली को कहीं से भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी आइडियाज हैं। इसके अलावा अभी इस महीने, हर महीने हम आपको कुछ ऑफर देते हैं। इस महीने हमारे पास एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे ऑफर्स हैं, जिसमें रिलीज 3 जो आ रहा है, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन करके दे रहे हैं। तो आप उसको भी आप अभी आप अगर AMC में आते हैं, हमारे AMCs में, यू विल गेट द एडवांटेज कि आपको रिलीज 3 का इम्प्लीमेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें काफी बड़े और एडवांटेज हैं, काफी एडवांस फीचर्स हैं, जो आपके बिजनेस को बहुत ही स्मूथ रन कर पाएंगे आप, और उससे आप पैसे बना पाएंगे। दिस इज आइडिया ऑफ द टैली प्राइम एंड आवर अदर सॉल्यूशंस। So this is your overall idea of the Rajya Lakshmi and what services we are providing. So thank you very much from my side. So it's over to you, Pooja. Thank you. Thank you for your time, sir. Thank you everyone for joining the session. Now we wind up the session. Thank you.